Okay, so now let's start with our budget, in which I think we have done a lot. हम लोगों ने ARC वगैरह कर लिए थे. AIF was done. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वाला जो था, this is one thing I have not done. I told you that we'll do with it, and I'll tell you certain aspects from new education policy that how they are working on to get these things right. So like quick glimpse, because the last video was also not created for budget. I'll just give you a refresh about it. एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था यूट्यूब वीडियो पे, that how many are there, यही दिए हुए हैं सारे लिस्ट में. ठीक है, मेजर पोर्ट्स. Okay, so we'll talk about the fact from here. Asset Reconstruction Company and Alternative Investment Fund. Now, Asset Reconstruction Company is a special type of financial institution that buys the debtors of the bank at a mutually agreed value and attempts to recover the debt or associated securities by itself. मतलब, let's say this is a bank और बैंक के पास कुछ अमाउंट है, एनपीए बन गया है वो. Now, between this there will be 90 days. So if you default for 90 days, only then a loan is converted into NPA. ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा नहीं पे किया तो कल से NPA हो गया. The bank will try to recover this money for 90 days. Now what they are proposing it that after these 90 days the chance of this money coming back is really low. So why not transfer this NPA to another third party? So there is something called as a asset reconstruction company or ARC. Now ARC will come and it will purchase this NPA from the bank at certain pre-decided prices. For example, let's say bank has 100 loans of 100 rupees each, total amounting to 10,000 rupees, but they are NPA. So bank decides कि यार इन पे कुछ नहीं पे निकाल पा रहे हैं हम, so we will sell it for 1800 rupees. कुछ ना आने से कुछ तो आना बेहतर होता है. So bank sells it off for 1800 rupees to the ARC. Now ARC, despite having purchased these loans, these 100 loans for 1800 rupees, will try to recover the entire 10,000 from it. This is how ARCs will be generating profit. Now 100% कहीं भी ये functional नहीं होता, total 100 loans पे कभी recovery नहीं होती. What they try to do is, suppose करो अगर 50 पे भी 100 rupees की recovery हो गई, तो that will be 5,000 rupees. It is still a winning position for the ARC. If 50 loans पे भी 100 rupees की recovery हो गई, that's 5,000 rupees. They have only paid 1,800 rupees. So this is how ARCs work. Now ARCs के अंदर अब क्या होगा? They are saying that qualified buyers can also provide them funds, and these alternative investment funds will also be able to provide funding to the ARCs. अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? ये 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं. कैटेगरी 1, 2 एंड 3. कैटेगरी 1 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे एंजल फंड, वेंचर कैपिटल फंड. ठीक है. देन कैटेगरी 2 जो है वो इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे डेट फंड्स एंड फंड ऑफ फंड. फंड ऑफ फंड क्या होता है बताता हूँ. जैसे सपोज करो एक म्यूचुअल फंड क्रिएट किया गया, या फिर सपोज करो कोई एक फंड क्रिएट किया गया है जो कि प्रोवाइड करेगा पैसा टू एनी एग्रीकल्चरल फर्म, या फिर एग्रीकल्चरल पे तो एग्जैक्टली क्यों ही करेगा वो प्रोवाइड, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को. ठीक है, ये एग्रो प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करता है, ऐसा एक फंड है. फिर देर इज अनदर फंड विच इज प्रोवाइडिंग मनी टू पेट्रोलियम. देर इज अनदर फंड. ये अलग अलग टाइप के फंड्स हो गए. ठीक है. अब क्या हुआ, मैंने एक मदर फंड प्रोवाइड करा, एक और नया फंड क्रिएट करके, जो इन तीनों फंड्स को पैसा प्रोवाइड करेगा. सो दिस फंड will provide money to these funds. These funds will provide money to these sectors. So this fund will be called as FOF or fund of fund. Next point है यहाँ पे category 3. This is the investment aimed at short-term returns achieved by employing complex trading strategies. This is hedge fund and pipe. अब hedge fund वगैरह क्या होता है? Suppose करो I am a high net worth individual, HNI हूँ मैं, और मेरे पास let's say $2 billion है. मैंने $2 billion इन्वेस्ट करा रखे हैं मार्केट में विद अ हेज फंड इन्वेस्टर. वो क्या करेगा, वो देखेगा कि किसी एक इंडस्ट्री में मैं ये $2 billion डाल दूं तो एकदम से शूट अप हो जाएंगे प्राइस और मैं एकदम प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा. सो हेज फंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मेजरली. ठीक है, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और निकाल लेते हैं. ऐसा कहा जाता है कि हेज फंड में इफ यू आर नॉट अर्निंग ह्यूज इनफ मनी, तो इन दैट केस इट्स नॉट वर्थ इट. ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं. ओपीसी के बारे में मैंने आपको बताया था, 1% कंपनी के फीचर्स क्या थे. पहले ओपीसी के अंदर एनआरआईज वगैरह जो थे, दे कुड नॉट स्टार्ट अ फर्म, यू नीडेड अ लॉट ऑफ कंप्लायंसेस. ठीक है, दो आपको शेयर होल्डर्स चाहिए होते थे, एक्सेट्रा. नाउ गवर्नमेंट इज चेंजिंग दैट.
अब ओपीसी स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने जो है एनआरआईज को भी परमिट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दे हैव सेड इज दैट ओपीसी स्टार्ट करने के लिए एनआरआईज को इंडिया में 120 डेज की रेजिडेंसी कंडीशन मीट करनी पड़ेगी रादर देन 182 डेज वाली। एंड थर्ड थिंग, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पेड अप कैपिटल एंड दी टर्नओवर। इन दो चीजों पे कोई भी लिमिट नहीं होगी ओपीसी की। व्हाई आर दे ट्राइंग टू डू इज रियलाइज दैट जब स्टार्टअप्स होते हैं तो स्टार्टअप्स के पास इनिशियल डेज में ना कैपिटल होता है कुछ भी, साथ ही साथ में बहुत ट्रबल्ड होते हैं स्टार्टअप्स। In that case, you really cannot expect them to go forward and create a private limited company. So, in order to boost the startups, they have said that we are making OPCs easier. One person company को easy बना रहे हैं establishment. Also, later on, if you feel that your company is grown up now and you can convert into private limited or maybe public limited, in that case, you can easily convert that. So, conversion from one form to the other is also being made very easy. Now, private limited or public limited का difference क्या है? Private limited has only few individuals as shareholders, whereas public limited company can sell its shares in open market. जो आप NSE, BSE exchange, stock exchange पे खरीदते हो, that is public limited. Also, किसी कंपनी के नाम के आगे आपने कभी public limited लगा हुआ नहीं सुना होगा. Instead, what you are able to read over there is only limited. So there are two different types of companies. पहली जो अपने नाम के आगे private limited लगाती हैं, दूसरी जो केवल limited लगाती हैं. So the companies which put limited are actually public limited companies. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टीएसए. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने टीएसए का सिस्टम आपको बताया था कि इन टीएसए देयर इज अ सिंगल ट्रेजरी अकाउंट. ठीक है, अभी क्या होता है, व्हाट यू डू इज आपने चालान भरा, चालान भरने के बाद में वो पैसा ट्रेजरी में जमा हो जाता है सरकार की. ट्रेजरी से जब वो पैसा जरूरी होता है, वेन एवर दीज पीपल नीड एनी डिपार्टमेंट, उसका अलोकेशन आ जाता है साल में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी डिपार्टमेंट को 5 करोड़ रुपीज एक साथ आ गए. अब 5 करोड़ रुपए अगर एक साथ आए हैं तो इन दैट केस व्हाट दिस डिपार्टमेंट डज इज थोड़ा थोड़ा जरूरत का पैसा निकाल के खर्च करता रहता है. समटाइम्स दिस मनी इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, समटाइम्स दिस मनी इज लेफ्ट ओवर. सो जो 2-3 करोड़ रुपए रहता है वो रिटर्न कर देते हैं वापस ट्रेजरी को. Now government has been implementing the system of TSA, which is also recommended by IMF and World Bank. Why? Because TSA के अंदर the money is not withdrawn lump sum. It is withdrawn as and when required. जब जितनी जरूरत होगी आप उतना पैसा निकालोगे, rather than कि एक सिंगल ग्रांट स्टार्टिंग में आ गया उससे आप खर्च करते जा रहे हो. Why is it important? Because this allows with some capital buffer with the government. And सरकार को इस पे इंटरेस्ट सेविंग्स होती हैं. जब पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो सरकार को इंटरेस्ट भी तो मिलेगा. तो इंटरेस्ट सेविंग्स आर अक्रूड ऑन दैट. ठीक है, ये प्रॉब्लम आज फिर हो गया है. ठीक है, सो इंटरेस्ट सेविंग्स वगैरह होती रहती है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया. जस्ट रीड इट योरसेल्फ वाली चीजें. स्वामित्व स्कीम में आपको लैंड ओनरशिप कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं. ठीक है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स एंड एवरीथिंग. सेकंड थिंग इज ऑपरेशन, जस्ट अ सेकंड. Second thing is Operation Greens. It's a price fixation scheme that aims to ensure farmers are given the right price for their produce. पहले क्या होता था, इसके अंदर केवल 3 क्रॉप्स इंक्लूडेड थे, टमेटोज, अनियंस एंड पटेटोज. अभी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इसके अंदर 22 और पेरिशेबल गुड्स को इंक्लूड किया जा रहा है. ठीक है, सो इस टाइप से इसकी एम्बिट को राइज कर रहे हैं हम लोग. देन देयर इज अबाउट सीवीड्स. सीवीड्स के बारे में खुद पढ़ लेना, सीवीड फार्मिंग क्या होता है एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. चाइना का फेवरेट फूड है एक तरीके से सीवीड. इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द सीवीड. ठीक है, तो वैसे ही पढ़ लेना कि अगली बीमारी कौन सी आ रही है, वहां से पता लग जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन. हाउ रेसिस्ट समटाइम्स वी गेट राइट व्हेन इट कम्स टू चाइना. चमगादड़ खाते होंगे ये तो. अगला पॉइंट है रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल. More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of new education or national education policy. Then 100 new Sainik schools will be set up, and a Higher Education Commission of India will be set up. Higher Education of India Commission will be replacing the Universities Grants Commission. यहाँ पे दो बॉडीज बनेंगी, एक तो HECI हायर एजुकेशन कमीशन, एंड देन देयर विल बी HEFI हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग के लिए जो है. दोनों बॉडीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगी. राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज यूजीसी ग्रांट्स अप्रूवल्स एज वेल एज ग्रांट्स, जो फंडिंग होता है, we are changing this. We are giving one body the right to provide with the permissions and the other body with the right to provide the money. ठीक है, सो इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे.
So it will have indeed actually the Higher Education Council of or Commission of India will have 4 different organs. One will be with the standard setting, second with accreditations, third with regulation, and fourth with funding. Also in 9 mega cities जहाँ पे बहुत सारे institutions and organizations का hub होता है, जैसे आप देख लो हैदराबाद में if you go, दिल्ली में if you come, there is a plethora of institutions which are prevailing, हर type के अलग अलग type के. So a glue grant will be set aside for this purpose, जिसके अंदर still good amount of money will be present, with which these people can go ahead and maintain. These institutions can be joined together. कि मान लो 50वें engineering college है, एक साथ उन्हें join करा दिया, एक hub में बना दिया. Then they can also communicate with this one particular part, क्या बोलते हैं इसको, medical colleges के साथ में, business colleges के साथ में और सबके साथ में. ठीक है? It will be done by creating a umbrella institute, umbrella structure for maintenance. Now, there was something called as NAPS, National Apprenticeship Promotion Scheme, which was launched on 19th August of 2016. इसने apprenticeship प्रोत्साहन योजना को replace किया है. इसके अंदर कुछ components है, वो सब अपने आप पढ़ लेना. Then NSIL, which is a PSU of the Department of Space, will be carrying multiple satellites. वो थोड़ा सा यहाँ पे provided है, तो NSIL क्या है उसके बारे में मैंने detail दी हुई है. Then कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की जो साइज है उसको हमने बढ़ा के 500 करोड़ से 30,000 करोड़ कर दिया. मेजरली बिकॉज वी न्यू दैट कोरोना वायरस के टाइम पे कंटिजेंसी फंड को देख के हमको लगा था 500 करोड़ रख ले जेब में, पॉकेट मनी है ये तो लिटरली दैट वाज द केस, which is why we are now increasing the size of the contingency fund from 500 crores to 30,000 crores. Now, in accordance with the views of 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for states at 4% of the GSDP, and 3% of the GSDP is expected to be reached by the states by 2023-24. ठीक है, ये सिंपली एक आसान सी भाषा में लेमन्स लैंग्वेज में बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि स्टेट्स अगर चाहें तो उधार लेके भी खर्च कर सकती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें इस चीज की परमिशन दे दी है. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अगला पॉइंट है आपके पास में, the FRBM Act mandates a fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st of March 2020-21. FRBM Act के अंदर ये बोला गया है कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी जो है ये ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते पार कर लेंगे. बट हुआ क्या, कोरोना आ गया. अब कोरोना आ गया तो 2021 में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. सरकार बोली कि ठीक है, इन 2021 वी विल नॉट हीड बाय इट. राइट नाउ वी विल बी हैविंग अराउंड दिस 9.8% ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा. आगे इसको 6.5% कर लेंगे ग्रेजुअली, फिर फर्दर वी विल पुल इट डाउन लेटर एंड वी विल ब्रिंग इट डाउन टू 3.0%. बट एज ऑफ नाउ द पाथ इज लाइक दिस. ठीक है, अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं, अराउंड ऑलमोस्ट 10% पे है हमारा फिजिकल डेफिसिट. नाउ पार्ट 1 यहाँ पे खत्म हुआ है बजट स्पीच का. एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो पार्ट बी पे आते हैं. पार्ट बी के अंदर टैक्सेशन के बारे में बात होती है, सो इसलिए वो खुद ही पढ़ लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं उसमें. देयर इज ओनली वन थिंग दैट पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका जो टैक्स का असेसमेंट होता था दैट यूज्ड टू बी फेसलेस. नाउ इवन द अपील्स वुड बी मेड फेसलेस in order to reduce corruption. Then there was something called as Turant Custom Scheme, in which an officer sitting in Bangalore can actually assess the goods which are present in Chennai ports, एंड चेन्नई वाला बैंगलोर के कर सकता था बैठ के वहां पे कस्टम्स का काम. ठीक है, दिस वाज अ फेसलेस असेसमेंट व्हिच वाज डन रिमोटली बाय कस्टम्स ऑफिसर. तो इसी वजह से इट एक्चुअली इंक्रीज द स्पीड बाय अ लॉट. ओके, now this scheme is being implemented by this Central Board of Indirect Taxes and Customs, which falls under the Department of Revenue. और Department of Revenue किसके अंदर आता है? Ministry of Finance के अंदर. तो ये तुरंत कस्टम्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज निष्ठा प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, तो एक बार आप ये पढ़ लेंगे. ठीक है, निष्ठा प्रोग्राम क्या है, कैसे चलता है, एंड उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है. बिकॉज सी, निष्ठा प्रोग्राम इज एक्चुअली फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने के लिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द निष्ठा प्रोग्राम. Then 60 years of Goa's accession to India, 50 years of Indo-Pakistan war, and everything is present over here, which you can read by yourself. Those who are watching this video on YouTube, इसी वीडियो के नीचे मैं आपको I'll try to provide you the PDF of this budget वाला document so that you can read it. ठीक है? So now others, if you have any questions, please feel free to ask.